Okay, winners. I hope audibility and visibility is clear. Yes, sir. Let's take a quick review for the last few chapters, like a few topics in the photosynthesis chapter. We started with the definition. It's an anabolic reaction. The light energy converted to chemical energy, the inorganic material converted to organic one. It does require an oxidizable substance like water, or the strong reducer like water, or H2S. That means that is performed by all those who have some pigmentations with them, like their whatever the organisms are. Bacteria are photoautotroph, some bacteria are photoautotroph like sulfur, purple, green bacteria, or some chemoautotroph, which is not required here in the chapter. Like green plants, तो फिर मैंने आपको site बताया. What is the site of photosynthesis? That is actually the quantasomes that contains chlorophyll. Perfect. And before that, the thylakoid membrane, which is the actual absorber of light. That thylakoid membrane, which is a single membranous double layered structure, has 4 complexes. Which are those complexes? PS1, PS2, cytochrome B6F, and ATP synthetase. Perfect. Those 4 complexes makes a proton gradient more inside the lumen and less proton concentration outside the lumen, or I should say in stroma. More in lumen, less in stroma. So the proton gradient develops just because of those 4 complexes, the together activity of those 4 complexes. Sun rises, the photolysis of water takes place. This all 2 reactions are together called as light reactions, and it performs a light harvesting complexes like those PS1 and PS2. Those complexes along with cytochrome B6F forms a gradient of proton inside the lumen, inside and outside the lumen, more in lumen, less in stroma. So those protons, which is the basically product of breakdown of water, or I should say the photolysis of water, those electrons are received by PS2, and then electrons move into the excited state. Then it is given to the PS1. Then this PS1, which is having an enzyme. What is this enzyme? NADP reductase. NADP. Reductase. Perfect. By using this NADP reductase, this PS1 converts this NADP into the NADPH2. Perfect. अब यहाँ होने के बाद NADPH2 बनने के बाद स्टोमा में H+ आयन या प्रोटॉन का concentration, I should say, lowering down in stroma. So hydrogen ion protons want to move from lumen to stroma. This is only the way, that is F0, F1 particle, or I should say the ATP synthetase. When ATP synthetase moves, facilitate the movement of those protons, there is a generation of ATP. So while we are performing PS2 to PS1, NADPH2 produced along with ATP. Whereas when we perform PS1, which is cyclic one only ATP produced. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था last lecture में. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. तो बच्चों मैंने आपको लिखवाने का मतलब मैं साथ में आपको बताता चल रहा था. I hope आपने नोट किया होगा. Is it? Yes, sir. Perfect. So overall, this photosynthesis we covered in following topics, following headings. First one we studied this definition. The second one was history. The third one was equation. There were so many questions on equation. Number 4 was requirement. Number 5 was site of photosynthesis. In this requirement, one was light, which is in the range of Vibgyor. The second one was water through osmosis. The third one was CO2 through stomata. The fourth one was pigment. And that pigment we studied in detail, that is chlorophyll, carotene, and phycobilenes. Chlorophyll has a structure. Just a minute. Yes. Chlorophyll is the structure that has that pole-like structure in which porphyrin head and phytol tail is there. You recall? Remember?
Yes, sir. Yes, sir. Good. Then we started for the mechanism. That was point number 6. We started for mechanism. And this mechanism having only two reactions. One is what? Light reaction, and another one is Dark red. dark reaction. Let us start with this mechanism. में मैंने आपको बता दिया था. Let us start take a review of this mechanism. This mechanism, one is having light reaction and one is dark reaction. Light reaction simply having one, the absorption of light. Who will absorb the light? Thylakoid. Who will absorb? It is which membrane? Thylakoid membrane. Agree? Yes, sir. Perfect. Please be on mute. Prathamesh, please be on mute. Prathamesh Abhale, please be on mute. Prathamesh Abhale, please be on mute. Okay. So as far as this absorption of light is concerned, thylakoid absorb. अब यहाँ पर thylakoid में absorb करने वाले दो system हैं. Those are two complexes. One is LHC1 and LHC2. LHC1 and 2 मैटर नहीं करता कि 1 किसे नाम दे रहा हूं, 2 किसे नाम दे रहा हूं. That is not PS1 and PS2. Whatever the LHCs, इसलिए दोनों का LHC कह दिया मैंने. Suppose इसे मैं कह देता हूं PS1, इसे मैं कह देता हूं PS2. तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि LHC1 मतलब PS1. LHC is light harvesting complex. I should not write it 1 and 2. There are two LHCs. Therefore, I wrote it here LHCs, light harvesting complexes. One is PS1 and one is PS2. In the last lecture, what we missed is, suppose I'm trying to draw a structure of chloroplast, then there will be a stack-like structure, and this structure is thylakoid membrane. Is it? Winners? Yes. Perfect. So suppose I draw like this structure. So what do you think? If I elaborate this image and increase like this is the thylakoid membrane, this is the thylakoid, then very one good question that will be asked that you must know, being a resonite, that there must be some differences between PS1 and PS2. मैंने आपसे कहा भी था, मैं आपसे पूछूंगा, yes or no? What is the difference between PS1 and PS2? Anyone? 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 Sir, PS1 does not have any DP reductase. Perfect. ऐसे समझते हैं स्मेरा. Started with the location. First of all, started with the location. If I am drawing this structure thylakoid, so मैं आपको बताते समय पढ़ाता था. This is PS2. Here is PS1. Here is cytochrome B6F. Because this was needed to explain, and this is ATP synthetase, I should say, or ATP synthase. But so what is PS1 and PS2 location? If I talk about the location, then PS1 and PS2, I just remember it like a layman, like a foolish man. मैंने उसे ऐसे ही याद कर रखा है कि when we talk about this granule structure or granule thylakoid, when we talk about this granule thylakoid, since those stack-like structures will definitely have two parts. One will be exposed part. One will be exposed part and one will be praised part. Just try to understand what I'm telling you. One will be praised part. I hope you will be agree with this. Yes. Perfect. Yes or no? So whatever the dark structure I drawn here, this is, I should say, the praised structure. The praised, उसको लिखते समय अलग लिखता हूं ताकि आपको गड़बड़ी ना हो. This praised structure, praised, and this one is the exposed structure. Do you agree with this? Jayavardhan, Mandar, Yes, Lisa, Pranav, Siddesh, Mugdha, Namisha. Agreed?
Yes, sir. Yes. अरे हाँ या ना बोलो बच्चों. Okay, fine. So if I talk about this structure like granule thylakoid, so there definitely there will, since it is a stack-like structure, definitely there will be a praised part and one will be the exposed part. So मैंने कहा ना, मैंने तो मूर्खों की तरह याद कर लिया उसे, but ठीक है, यदि उसे याद रहता है, क्वेश्चन सही होता है, तो it's nothing like anything. और उससे एक नहीं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. So if someone will ask you what is the exact location of PS1 and PS2, so you can blindly say कि PS2 is that part which is in the praised one. And definitely मैंने कैसे याद कर लिया उसको कि भाई डबल के बीच में तो प्रेस्ड होगा ना, सिंगल PS1 यदि कुछ हो तो उसमें प्रेस कहां से हो, याद करने के लिए बता रहा हूं सिर्फ आपको. So it will be when PS2, when it will be PS2, then definitely there will be a praised part. Understood? सर नहीं समझा. Okay. Did you understand this praised structure? Yes or no? No, sir. This is granule thylakoid. Am I right? Who asked the question? Sir, Manoli. Manoli. Did you understand this? This is a granule thylakoid. Yes or no? Yes, sir. This one will be more one thylakoid. Yes or no? Yes, sir. This will be one more thylakoid. Yes or no? Yes, sir. So this is a stack-like structure. Yes or no? Yes, sir. So what do you think? This part is exposed or hidden part? Sir, it will be hidden. It will be hidden. And this one? Exposed. This one exposed. So PS1 located on the exposed part and PS2 located on the praised part. Did you understand? Sir, but then जो hidden part है उधर तो ATPS आना चाहिए ना. अरे 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 मैं वही कह रहा हूं ना आपको, इसीलिए तो मैंने कहा ना बच्चों, इसलिए मैं ऑफलाइन बुलाता हूं कई बार. See, this is one thylakoid that I drawn, Manoli. So on this thylakoid membrane, this is not only the one structure. It is throughout the membrane PS1, throughout the membrane PS2, throughout the membrane cytochrome B6X, throughout the membrane ATP synthetic. ये तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा. Manoli, understood? Yes, sir. ये केवल एक है ऐसा नहीं, ये तो पूरा एक मैंने stack-like स्ट्रक्चर उठाया, जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर उठाया. This one is a thylakoid membrane. Everyone understood? This one is a thylakoid structure. Did you agree with this? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So definitely another part will be just below this structure. Yes or no? Yes or Yes, no? sir. Perfect. But if I talk about a single thylakoid membrane, then this will be the structure and this will be a complete ring structure. Yes or no? Yes, sir. But whatever the exposed part of this membrane, this will have only PS1, not the PS2. But between the junction of two membranes, there will be a PS2 structure, not the PS1. Understood? Yes, sir. मैं मनोली जब उसको स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना बेटा, ये स्ट्रक्चर जब मैं बना रहा हूं तो इस स्ट्रक्चर में यदि मैंने ऐसा बनाया, so what do you think about this region? ये रीजन कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच तो करेगा ना मनोली. Yes, sir. वो जहां पर दो ग्रैनल थाइलाकोइड अटैच हो रहे होंगे बेटा, वहां पर यदि कोई होगा तो वहां कौन होगा? दिस इज PS2. समझा क्या? सर फिर वो स्टेटमेंट जो आपने बोला था कि थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो सर Yes, वही फिर कह रहा हूं ना. अरे भाई PS1 साइटोक्रोम PS1 साइटोक्रोम ATPase ये तो कितना आप फाइन और माइन्यूट बात कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन? मैं बात कर रहा हूं लीफ के पैलिसेड टिश्यू का बेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट. कैन यू सी द ऑर्गेनल बाय नेकेड आईज? नो सर. नो. मैं बात कर रहा हूं उस ऑर्गेनल का ग्रेना. इज इट कैन इट बी सीन बाय नेकेड आईज? नो सर. मैं बात कर रहा हूं उसके थाइलाकोइड और थाइलाकोइड के एक सिस्टम और सिस्टम का क्वांटासोम और क्वांटासोम का एक केमिकल स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल. इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. मैं यदि उसको बात करूं तो इस मेम्ब्रेन पर पूरे पर ये 4 कॉम्प्लेक्सेस फैले हैं बच्चों. ऐसा थोड़ी कि ये एक ही और यहीं से पास होना है.
वो तो समझाने के लिए कहां पर है, तो मैं इसको इधर बना दिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ. गेटिंग अ पॉइंट मनोली? Yes, sir. परफेक्ट. सो मैंने आपसे कहा कि यदि इफ आई टॉक अबाउट द PS2, मैंने कैसे याद किया, वो मैंने मदद की आपके समझाने के लिए कि कभी भी सैंडविच होना होगा तो उसके लिए 2 तो लगेंगे ना एटलीस्ट. भाई 2 स्लाइस लगेगी तब तो सैंडविच होगा ना. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो उसके लिए 2 तो होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने याद कर लिया कि PS2 जो होगा वो होगा प्रेज्ड पार्ट में, और PS1 जो होगा वो होगा एक्सपोज पार्ट में. नाउ अंडरस्टूड? Yes, sir. उसकी वजह से एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सिद्धेश, आर यू देयर? प्रणव, प्राप्ति, मुग्धा, Yes, sir. नमिशा, Yes, sir. Yes, sir. Yes. आंचल, आर यू देयर? Yes, sir. स्मेरा, विशा जी, सुन रहे हैं? Yes. Yes, sir. तेजस, प्रथमेश, मैंने ये Yes. कहा, इससे एक और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया. जब मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, तो ये तो सब बता देते, ये तो हर बच्चा बता देगा कि PS1 जो है वो साइक्लिक मोड में काम करता है, PS2 जो है वो नॉन साइक्लिक मोड में काम करता है. अग्रीड? अग्रीड? Yes, sir. बल्कि करेक्ट तो ये लिखना चाहिए मैंने कि ये दोनों में काम करता है. नाउ बेटर अग्रीड. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? ओहो, अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes. Yes. भाई क्यों PS1 साइक्लिक नॉन साइक्लिक में कह रहा हूं बच्चों, क्यों ही गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? If I started with P680, which is PS2, which is receiving an electron from this electrons received by this one is received by electron transport chain, move to the PS1, that is P700. Remember? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then it produce NADP to NADPH2. Yeah, agreed or not? Yes, अरे sir. ये बताया था मैंने या नहीं बताया था आपको? बताया था सर. बताया था. So this scheme is known as Z scheme. This scheme is known as Z scheme of photophosphorylation. Though it is alphabet similar to me only, but NCERT वालों को पसंद नहीं आया होगा मेरा अल्फाबेट N अल्फाबेट, उन्होंने Z स्कीम कह दिया उसको. नो प्रॉब्लम, हमें कोई समस्या नहीं. अब P680 से चला हुआ इलेक्ट्रॉन P700 पर आता है और NADP रिडक्टेज होने की वजह से NADPH2 बना देता है. So when the electron from P680 moves, what we receive? NADPH. NADPH2 along with one ATP. Whereas when we continue with P700, we received only one ATP because it is in a cyclic mode. Only one ATP is received and not the NADPH2. Did you understand this? Are you Yes. understand? Yes, बच्चों समझ sir. नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बोले. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंदार, तेजस, सिद्धि, समझ में? Yes, sir. सर हाँ बोलिए. सर वो पार्ट एक बार रिपीट करो ना, नहीं आया समझ. कौन सा बोलो? सर वो जो आपने बताया वो एटीपी वाला. तो बेटा फटाफट बोला करो ना, इतना वेट क्या करना उसमें. P680 से चला हुआ इलेक्ट्रॉन, since P680 received the electron from the photolysis of water. ओम, इस पर अग्री हैं आप? यस सर. Perfect. Those electrons are given to the PS1. Agreed? यस सर. Those electrons when received by the PS1, then PS1 had an enzyme NADP reductase. Agree? यस सर. This PS1 by taking the stromal proton reduced NADP into NADPH2. Agree? यस सर. So when the electrons started from PS2 or from the photolysis of water, NADPH2 along with ATP produced. Agreed? यस सर. Perfect. But if I'm not talking about the electrons that are given by PS2, only PS1 is there. So it will be in a cyclic manner. It will not move in this direction. Agreed?
Yes, sir. So only what will produce? ATP. ATP. तो वही मैंने कहा कि PS1 केवल क्या देता है आपको? ATP, जबकि PS2 क्या देता है? ATP एंड। अब मुझे बोलिए, यदि मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा कि दिस इज द पार्ट ऑफ बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो गलत लिखा क्या मैंने? No, sir. No, sir. अग्रीड? Yes, sir. अरे अग्रीड, Yes. फटाफट म्यूट अनम्यूट करके बोलो ना Yes, बच्चों, sir. क्योंकि टॉपिक मुझे पता है कि मैं कैसा कंट्रोल कर रहा हूं उसे पढ़ाने में। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको कहीं ऐसा हो कि आप थोड़ा सा भी उसमें इधर उधर हो जाए। एनीवे, एनी मोर डाउट यू हैव? एनी मोर डिफरेंस यू हैव? Activate at 700 PS1. परफेक्ट। PS1 की बात करें तो P700 एंड दिस इज P680। मिश्रा जी बहुत ही बढ़िया। एक और थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट बताइए यार, विनर बैच से थोड़ा सी बड़ी सी उम्मीदें हैं। PS1 should I say independent of photolysis? Yes, sir. Smira madam agree? Yes. थोड़ा सा भारी वाले बताओ तो मजा आए यार। इंडिपेंडेंट ऑफ photolysis of water and it is what? Dependent? Yes, sir. It is dependent. बहुत बढ़िया। और बोलो, और कुछ? अब मैं आपको बताऊं जिसके लिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। Should I write it here कि PS1 is the in exposed part? Yes, sir. ऑफ ग्रेना, एंड यही तो सबसे बड़ी ट्रिक है दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक्सपोज पार्ट ऑफ ग्रेना अलोंग विथ स्ट्रोमल थाइलाकाइड, अलोंग विथ स्ट्रोमल। भाई जिसे एक्सपोज ही होना है तो वो क्या ग्रेना और क्या स्ट्रोमा, वो तो फ्रैट चैनल पे भी हो सकता है ना। यस और नो? Yes, sir. और जबकि इसकी मैं बात करूं तो केवल कहां मिल रहा है? प्रेज्ड पार्ट ऑफ ग्रेना। अंडरस्टूड? Yes, sir. बच्चों समझे कि नहीं अब समझे? स्ट्रोमा में होना जरूरी क्यों है? स्ट्रोमा में नहीं, फिर गलत जा रहे हैं। स्ट्रोमा में नहीं कह रहा हूं मैं, स्ट्रोमल लैमेली कह रहा हूं मैं। एंड ये बच्चों इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ थाइलाकॉइड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट सिंस दिस एक्सटेंशन इज मूविंग और पासिंग थ्रू स्ट्रोमा, आई शुड से स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। मनोली? यस सर। भाई दिस इज द ग्रेनल थाइलाकॉइड, छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी। This is a granule thylakoid and this thylakoid is extension from one stroma, one grana to another grana. So यदि एक ग्रेना से दूसरे ग्रेना में जा रहा है and this is, if this is an extension of thylakoid, so what I should say this, क्या कहूं इसे मैं? thylakoid कहूं या ना कहूं? कहेंगे सर। जब इसको thylakoid कहेंगे तो ये स्ट्रोमा में से पास हो रहा है, तो I should say this stromal thylakoid. Is it? यस सर। And since this is stromal, इसको कोई स्ट्रैक-लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी बना है। The complete fracture channel is exposed. If it is exposed, so exposed part में कौन मिलता है? PS1। Understood? यस सर। Perfect. So if I talk about the absorption of light with this respect of PS1 and PS2, one more difference I can write in the same way between cyclic and non-cyclic phosphorylation. Non-cyclic the cyclic versus non-cyclic. अब ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे बन जाना चाहिए। एनीवन, इसको देखते हुए बोलिए फटाफट। टेल मी। Only PS1 is involved. Only PS1 is involved. Very nice. Only PS1 is involved. What do you think? Both Both. PS1 Both are and involved. PS2. Perfect. Second बोलिए। Less energy is produced. Less energy is produced. Only
only ATP will produce, and here ATP and NADPH. perfect. ठीक. थर्ड बोलिए. Agree? Yes, sir. Started. Yes, sir. I should say start, क्योंकि इन्वॉल्व तो ये भी हो रहा है उसमें, इन्वॉल्व तो ये भी हो रहा है उसमें, बट P700 और P680 तो लेकर स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिख दिया. परफेक्ट. फोर्थ बोलिए. independent of photolysis of water. इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर ना. What photolysis? This is what? Dependent? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी ने लेना है. और बोलिए. present in the exposed part. Will be performed by the photosystem which are present in Exposed part of grana. exposed part. And this one is by Sir. praised and exposed दोनों, क्योंकि both 1 and 2 है ना उसमें. Understood, winners? Yes, sir. Yes, sir. सर तो फिर वो डिपेंडेंट ऑफ और डिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना कौन, ये वाला कि ये वाला? सर. नॉन साइक्लिक. ये क्यों इंडिपेंडेंट होगा भाई? सर क्योंकि उसमें दोनों प्रेजेंट है ना. PS1 PS2. दोस्त वही तो बता रहा हूं मैं. यदि P680 की मैं बात कर रहा हूं तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा किससे? H2. तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? हाँ सर समझ गया. समझे? और यहाँ पर बच्चों एक Mn करके बहुत सारी चीजें, Mn लगता है, TP पे सब छोड़ देते हैं अभी. कुछ ऐसे एलिमेंट लगते हैं जिसको कहते हैं अपन OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. OEC मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ये सब मिलकर थायमिन पायरोफॉस्फेट मैंगनीज ये सब मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. उसकी जरूरत नहीं है. बस इतना ध्यान रखिए, P680 इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर और फोटोलिस ऑफ वाटर एंड PS1 इज नॉट. और मैंने आज एक और नई चीज आपको बता दी, एक्सपोज पार्ट एंड प्रेज पार्ट. अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. अब मैं यदि आगे की बात कंटिन्यू करता हूं बच्चों, तो मैंने आपसे कहा फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन लाइट, सेकंड हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर. आई होप यू अंडरस्टूड. यहां तक क्लियर है लाइट रिएक्शन? यस सर. एंड इसका रिजल्ट यदि आप मुझसे पूछें, लाइट रिएक्शन का रिजल्ट यदि आप मुझसे पूछें, तो फॉर्मेशन ऑफ और द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. यस और नो? यस सर. और Yes, sir. एनर्जी जो मिली, हाँ बोलिए बोलिए. एनी डाउट टू एनीवन? नो सर. No, sir. No, sir. प्राप्ति, No, sir. सिद्धेश, तेजस? No, sir. No, sir. तो ATP and NADPH2 पार्थ कितने वगैरह नहीं है आज? पार्थ आर यू देयर? चलिए कोई बात. सो लाइट, मैंने कहा था दो ही रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. यस, स्टिल आई एम अग्रीड. Light reaction, absorption of light, photolysis of water, the result will be production of energy, the ATP, the NADPH2, everything is produced in light reaction. Therefore, it was called as light harvesting. Light को harvest किया और इसकी वजह से दो सिस्टम चले, PS1, PS2, and ultimately we received the huge amount of energy, which is now be utilized in the another reaction known as dark reaction. Or I should say the biosynthetic pathway. Biosynthesis. क्यों biosynthesis कह रहा हूं? क्योंकि biologically the food will be synthesized in the green plants known as dark reaction. So whatever the plants are available in nature will undergoes only 3 patterns. This is C3 pattern. One is C4 pattern. And one is CAM pattern. The CAM is known as
क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। आपको सिर्फ नाम पता हो इसलिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज इसे नहीं पढ़ाया जाएगा। C3 is Calvin cycle, C4 is H-N Select cycle, and CM both combination of C3 plus C4। वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दूंगा, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। So should I start with C3 now? And should I start with dark reaction? Yes, sir. Please check on the board. If any doubt, then tell me. Sharing the image. आप भी नोट कर रहे होंगे विनर्स। सर हाँ बोलो। सर वो जो जेड स्कीम चलती है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो फिर उसमें बीच में इंटरमीडिएट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं क्या? मतलब तुम थोड़ा जोर से बोल बेटा। मैम मतलब सर, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, तो फिर उसके बीच में कोई सब्सिक्वेंट मतलब एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं क्या? मतलब कि सिर्फ एकदम इजीली हो जाता है वो, मतलब क्या नहीं होता नहीं है नहीं, एग्जैक्टली? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसमें बनने वाला फोटोलिसिस, इसमें होने वाला एनर्जी प्रोडक्शन एटीपी एंड NADPH2, इसके फॉर्मेशन में एक नहीं बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व। और बहुत सारे एंजाइम कहने के बजाय आई शुड से कि दिस ट्रांसफर इज परफॉर्म बाय द एंजाइम्स दोस इन्वॉल्वड इन रेडॉक्स नोन एज ऑक्सीडोरिडक्टेज। वी हैव लर्नड इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर ओम। यस सर। परफेक्ट। बट इससे ज्यादा एंजाइमेटिक प्रोसेस आप मुझसे पूछो तो डार्क रिएक्शन मींस डार्क रिएक्शन इज मोर एंजाइमेटिक रादर देन लाइट रिएक्शन। मिश्रा जी। सर तो फिर वो सब्सिक्वेंट एंजाइम जो होते हैं उसमें यूं उसके नाम लर्न करने हैं? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। कौन से एंजाइम, जैसे मुझे बताइए कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं आप? सर वो अब मुझे देखना पड़ेगा, मैंने बस इतना देखा था कि वो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे। एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होने वाली काम नहीं है। एक तो ये एटीपी सिंथेज एक एंजाइम हो गया यहाँ पर। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है एक एंजाइम तो यहाँ हो गया दोस्त, वो हो गया एटीपी सिंथेज। यहाँ एक एंजाइम इन्वॉल्व हो गया, बाकी सारा पिगमेंट का खेल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एंजाइम की कहानी जहां तक बात आती है, ये आती है NADP रिडक्टेज, और उसके बाद सारे एंजाइम्स लगेंगे डार्क रिएक्शन। वो एंजाइम जरूर याद करने पड़ेंगे, दैट आई विल टेल यू। ओके। Should I erase this, winners? सर वो HS साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा साइकिल बेटा? तो C4 पैटर्न के नीचे आपने लिखा है HS साइकिल। H-N select, H-N select या क्रेब हेंसलेट साइकिल भी उसको कहते हैं। एक मैं आपको बता ही दूं, स्पेलिंग पे लिखा ही दूं आपको। H select, HATCH, H and select, SLACK, H and select. Smira, noted? Yes sir, noting down. सर वो थर्ड कौन सा है? बेटा ये वाला हाँ सर। CAM, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये डेजर्ट में होता है, थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में मैं। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। Done sir. ओके मिश्रा जी, नोटेड? यस सर। मैं इसे मिटाता हूं, तब तक मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूं आपके लिए। आप इसे देखते रहे और मुझे पॉइंट बताइए कि सर ये पॉइंट
Screen is visible to you? Yes, Yes. sir. Yes. Please check. मैं इसे इरेज करता हूं क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा गीला करना पड़ेगा मुझे. मैं जब तक इसे इरेज कर रहा हूं इसको देखिए और पॉइंट बोलिए सर ये नहीं समझ में आया. Credit winners. No, sir. कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है बच्चों की नहीं सर ये नहीं भारी जा रहा है थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत पूछो. So what is PGA? What is PGA? Phosphoglyceric acid. This is the first stable product. अभी आ रहा हूं उसी पर बताता हूं बेटा. This is phosphoglyceric acid my dear. Okay, sir. सर वो 8th पॉइंट नहीं समझ में आया. Okay. Who asked? प्रणव. No. Photo respiration और respiration. अब फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में आपको ये मैंने क्यों बताया ताकि मैं आपको C3 और C4 पर मैं आपको आपका बता पाता. फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? दिन के समय होने वाला रेस्पिरेशन है प्रणव. अग्री? यस सर. अब जो दिन के समय होने वाला तो डेफिनेटली जहां पर सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा. फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्लांट द्वारा ऑक्सीजन लिया जाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना. अग्री? यस सर. और भाई जब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है दैट मींस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब ऑक्सीजन ली जाएगी तो उस समय तुरंत ब्रेकडाउन करने के लिए सबस्ट्रेट कहां से बन रहा होगा? वो फोटोसिंथेसिस से बन रहा होगा. यस और नो? यस सर. और जबकि दूसरे इसमें जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के केस में दिया गया है जो रात में भी हो सकता है, जो रात में भी पॉसिबल है. अब रात में भी पॉसिबल है तो सब खाना तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसको डाइजेस्ट कर. दिन के समय तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ रही है. तुम्हें खाना भी बनाना पड़ रहा है और तुम्हें सांस भी लेनी पड़ रही है. प्रणव, यस और नो? यस सर. तो सबस्ट्रेट तभी बनता है जब उसका यूटिलाइजेशन वाली बात होती है और नॉर्मल रेस्पिरेशन के केस में तो ऑलरेडी बना हुआ होता है. अग्रीड? यस सर. अभी इसको मैं बताता हूं. ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes, sir. या चलिए मैं आपको शेयर करके रख दूंगा बच्चों. डोंट वरी अबाउट. पहले कंसेप्ट पकड़ते हैं ताकि आपको ज्यादा से मैंने सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए कि आपको पता लगे कि क्या अलग है उसमें. चलिए, शुड आई स्टार्ट विद डार्क रिएक्शन?
Yes, sir. Dark reaction, or I should say the biosynthetic pathway. Is it? Let us start with C3 और कंपैरिजन बताने के लिए मैं ले चलूंगा साथ में C4. पेन डाउन कीजिए, ध्यान से सुनिए. While we are performing or while we are learning the dark reaction or the biosynthetic pathway, I should say the green parts of the plant or the chlorophyllous part, there must be a molecule which will receive the carbon dioxide. Agree with this? Yes, sir. Then only what we can expect, then only we expect what? Ki there will be the fixation of carbon dioxide. Until now, sir, carbon dioxide is received, how one can expect that it will be fixed? Agreed, winners? Yes, sir. Yes, sir. So here will be the RUBP and here will be the PEP. Please note with me. Please note with me. Noted. This is what? Ribulose bisphosphate. And this is what? Phosphoenol pyruvate. Noted? Yes, sir. Okay, fine. So the next one is, if we are talking about the dark reaction, definitely this is the CO2 receiver. So I should say CO2 from the atmosphere is received by this and received by this. Yes or no? Irrespective of C3C4. अभी छोड़ दो C3C4 क्या है? अभी छोड़ दो C3C4 क्या है, लेकिन अभी ये तो कंफर्म है ना कि ये दो रिसीवर हैं उसके. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. मतलब this, I should say, what is this? Atmospheric CO2. अब बहुत इजी लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 ये रिसीव करता है, ये रिसीव करता है, मतलब देयर आर टू डिफरेंट प्लांट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ C3C4. डोंट उसको अभी C3C4 दिमाग में अभी मत रखो. सिंपल मैंने आपसे कहा कि दो टाइप के दो पैटर्न हो सकते हैं प्लांट में, दो डिफरेंट टाइप के पैटर्न हो सकते हैं. एक हुआ जिसने राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने रिसीव किया और एक प्लांट ऐसा जिसने PEP ने रिसीव किया. चलिए अगली बात, RUBP ने इसको जब रिसीव किया तो CO2 को फिक्स करने के दौरान एक प्रोडक्ट बनाया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे अभी मैंने कहा मनोली, आपने पूछा था क्या? Yes, sir. कीजिए. और जब इसने फिक्स किया तो एक प्रोडक्ट बनाया दैट इज OAA, आई शुड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. Yes or no? But since this is a 3 carbon compound and this is a 4 carbon compound, और ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इसे बना रहा है, बात को समझना. ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट इसे बना रहा है और ऐसा भी नहीं कि ये डायरेक्ट इसे बना. There are so many steps in between. बट हमें तो डायरेक्ट चलना है क्योंकि इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं जाता और हमें लर्न भी नहीं करना. Whatever the first stable product is, based on the stable product's carbon number, they are named as C3 and C4. There are so many products in between. I'm not telling about you. But since the first stable product, which can be identified, which can be determined, so this was 3 carbon compound and it was 4 carbon compound, so called as C3 cycle and C4 cycle. Did you understand the concept of C3, C4? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. This phosphoglyceric acid reduced to sugar, or I should say sucrose, or I should say ज्यादा better है, मैं लिखूं आपको triose phosphate. This is triose phosphate. This is triose phosphate. और ये जो ट्रायोस फॉस्फेट लिखा ये डेफिनेटली बना देगा शुगर. ये हो गया भाई कार्बोहाइड्रेट का, बन गया कार्बोहाइड्रेट्स. और इसने रीजनरेट करके फिर से बना दिया RUBP. इसको मैंने कह दिया रीजनरेशन, इसे मैंने कह दिया रिडक्शन,
इसे मैंने कह दिया फिक्सेशन या स्टेबल प्रोडक्ट, उसको मैं क्यों ही कुछ लिखूं. So this is a simple cycle in which the first stable product is 3 carbon, so called as C3 cycle. Understood? Yes, sir. सर सर वो क्या? शुगर से वापस ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बनेगा? शुगर से ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बनेगा, उसको मैं चलिए मैं हटा देता हूं. बनने वाले नहीं बनने वाली बात नहीं इसमें ना. मैंने तो आपको बस ये बताया कि या तो वो ट्रायोस फॉस्फेट भी अपने आप में काफी है, क्योंकि ट्रायोस शुगर हो सकती है, पेंटोस शुगर हो सकती है, एक्सोस शुगर हो सकती है, व्हाटएवर इट इज. मैंने हटा दिया. सिंपली शुगर विच इज कार्बोहाइड्रेट. नाउ अग्री? यस सर. सर तो फिर रीजनरेशन रीजनरेशन ट्रायोस फॉस्फेट से हो गया ना. रीजनरेशन okay. ट्रायोस शुगर से नहीं हुआ, वो इसने शुगर भी बना दी और इसने रीजनरेट भी कर दी. अग्री? यस सर. परफेक्ट. सो अभी व्हाट इज द मेन कंसेप्ट इज दिस. भाई हम तो डार्क रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2 जो कि हमें मिले थे लाइट रिएक्शन में. अग्री विनर्स? Yes, sir. तो मैंने क्या किया भाई, ये जब पीजीए बना स्टेबल प्रोडक्ट, उसके बाद रिडक्शन एनर्जी तो सारी यही लगनी थी. अब ये RUBP था 5 कार्बन कंपाउंड और ये बन रहा है 6 कार्बन कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट. क्या बन रहा है? C6H12O6. यस और नो विनर्स? Yes, sir. विनर्स यस और नो? Yes, sir. Yes. और यहां से Yes. कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 1 कार्बन, ये CO2 का 1 कार्बन आ गया, ये 5 कार्बन 6 कार्बन, तो यहाँ तो 3 कार्बन वाला है. तो आई शुड से द 2 मोल्स ऑफ PG. अग्रीड? अग्रीड? Yes, sir. Yes. यस. Okay, so now further, if these are the 5 1 plus 1 carbon, the total 6 carbon, and if the 3 carbon compound is producing, this 3 carbon compound which is producing, there must be the 2 moles of this. Agree? Yes, sir. Yes. Now Yes, sir. this 2 moles of PGA phosphoglyceric acid is producing 6 carbon compound. Here I should utilize ATP plus NADPH2, which will utilized, and since utilized, so it will produce ADP plus IP, and definitely this is NAD plus, or I should say NADP plus, क्योंकि यही तो हाइड्रोजन यूज किया जाएगा और एनर्जी मिलेगी उसको. तो मैंने यूज कर लिया ATP plus NADPH2, बट टेक्निकली आई शुड राइट हियर इनटू 2. क्या लगता है आपको? ये इनटू 2 समझ में आया आपको? No, sir. अरे भाई अब देखो, आया कुछ समझ में? No, sir. No, sir. अरे यस सर. आ गया. सिंपल सी बात थी मनवाली. अभी पीजीए को करो, एटीपी और NADPH2 लगेगा, मुझे कितने पीजीए लगाने हैं? Yes, sir. आगे समझ. परफेक्ट. चलिए, और जब ये ट्रायोस फॉस्फेट से रीजनरेट होता है दोस्तों, तब वहां पर एक और एटीपी कंज्यूम होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी प्लस आईपी. और यही सब तो लग रहा था, इसी के लिए तो लाइट एनर्जी में बनाया था सब. सो आप मुझे बता सकते हैं टोटल कार्बोहाइड्रेट के बनने में कितने एटीपी लगे होंगे और कितने NADPH2 लगे होंगे? कैन यू टेल मी? 2 Sir, NADPH2 and 1 ATP. बस अब यहीं पर तो मार्क खा गए विनर. एक्सपेक्टेड आपसे ये था. मैं नेट रिएक्शन लिख दूं आपको. नेट रिएक्शन यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 6 RUBP. क्यों मैं 6 RUBP लिख रहा हूं भैया? एक साइकिल में आप, ये तो रीजनरेट हो गया मिश्रा जी,
ये रीजनरेट हो गया, यस और नो? यस सर। और आपको तो एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स करना था ना मिश्रा जी। यस सर। और जब एटमॉस्फेरिक कार्बन आपको 1 कार्बन है तो आप 6 कार्बन कैसे बना सकते हो जब तक 6 टाइम आपको आरयूबीपी नहीं लगेगा? अंडरस्टूड? सर नहीं आया समझ में। अरे नहीं आया समझ में, थोड़ा तो विंग्स को ओपन करो। इक्वेशन क्या था मिश्रा जी? सर किसकी? फोटोसिंथेटिक की मेन इक्वेशन क्या है? CO2 + 12H2O gives C6H12O6। फिर से बोल, फिर से बोल। 6CO2 + बस बस 12 कितना बोला? 6CO2। तो फिर यहाँ 1 कार्बन पे कैसे मान गया तू? सर तो आपने 6 RUBP क्यों रखा? वो तो 30 कार्बन हो जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं एक बार आरयूबीपी ले लूं, 1 आरयूबीपी से काम हो जाएगा आपका? सर मिश्रा जी मतलब सिंपल लॉजिक है यार। मैं लेता हूं 1 आरयूबीपी ले लेता हूं और 1 CO2 ले लेता हूं, आपका C6 बन जाएगा क्या? हाँ सर। बन जाएगा? सर 5 और 1 6 कार्बन होगा। अरे भाई, इसको फिक्स कर रहा है कि इसको फिक्स कर रहा है? ओम, सर फिक्स मतलब क्या? अरे क्या ही करो तुम लोगों का यार। 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6, ये इक्वेशन है ओम। यस ये क्यों लिया तूने? सर क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी थी, रिएक्शन आगे बढ़ानी। मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ना? हाँ सर। 6 लेगा ना तू, यस और नो? यस सर। तो जब 1 के लिए 1 आरयूबीपी लग रहा है तो 6 के लिए कितने आरयूबीपी लगेंगे? 6 समझे सर। गजब कर रहा है यार। चलिए, अभी मैंने 6 आरयूबीपी लिया, 6 CO2 लिया, और मुझे पता है मुझे लग रहे हैं 18 ATP। कैन यू टेल मी हाउ कम? कैन यू टेल मी हाउ कम? यार इतना तो यार विनर बैच एक्सपेक्टेड है सर तुमसे। 2 रिडक्शन से और 1 रीजनरेशन से और इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। परफेक्ट। कौन बोला? प्रणव। प्रणव, बहुत बढ़िया बेटा प्रणव। सिंपल है यार, 2 ATP इधर पे, 1 ATP इधर पे, तो 3 और 6 टाइम्स तो 18। स्मेरा, प्रथमेश, प्राप्ति, मनोली, सिद्धि, बोलो, नमिशा, मुग्धा। Yes, sir. यस सर। तो प्लस 16 ATP प्लस प्रणव भाई इंस्टेंट आंसर कितने NADP? 12। वेरी नाइस। एंड व्हाट अल्टीमेटली इट विल गिव, क्या क्या ये देने वाला है उसकी यदि मैं बात करूं तो शुड आई राइट 6 RUBP मिश्रा जी? यस सर। C6H12O6 मिश्रा जी, यस सर। प्लस 18 ADP मिश्रा जी। सर ये नहीं आया समझ में। अरे सर 18 ADP कैसे होएगा? अरे 18 ATP क्या ही कर रहे हो तुम लोग, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो आज? 18 ATP टूटेंगे तो क्या बनेगा भाई? हाँ सर समझे। गजब कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब क्या ही कर रहे हो। प्लस मनोली मैडम 18 IP, आप बोलोगे तो ठीक, नहीं तो मिटा दूंगा मनोली मैडम, जैसा आप कहो। अरे मनोली मैडम समझे? नहीं सर। क्या ही कर रही है मनोली। आपको मनोली इस बात से एग्री है आप? यस सर। तो इसको तोड़ो ना बेटा, ब्रेक डाउन। 18 ATP विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट? ADP एंड IP। तो वो बन गया 18 यस सर समझे। 18। गजब कर रहे हो तुम लोग। बैठे हो कि कुछ खाना वाना खा रहे हो तुम लोग? बोलो। बैठे सर बैठे ही हो, बैठे ही तो हो, वही तो समस्या है, बस बैठे ही हो। ये समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? समझा yes. sir. और whatever this reaction is
performed by an enzyme, this is named as Rubisco. और यदि आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद होगा तो याद होगा द मोस्ट अबंडेंट, याद आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. In biosphere, yes or no? Yes, sir. Perfect. And this enzyme surprisingly, not surprisingly, उसका molecule ही है ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. ठीक हीमोग्लोबिन की तरह दोस्तों, हीमोग्लोबिन की तरह ये भी दो से अफिनिटी शो करता है, कार्बोक्सिलेज से भी और ऑक्सीजनेज से भी. मतलब ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ठीक वैसे ही जिधर दम उधर हम. तुमने उसे CO2 ज्यादा दे दी तो वो CO2 को फिक्स कर देगा, तुमने उसे O2 ज्यादा दे दी तो वो O2 को फिक्स कर देगा. तो वो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा, उससे वो रिएक्ट करते हैं. अग्री विद दिस? Yes, sir. अब समझिए बात को कि इसके बाद में बताता हूं. यदि ये C3 प्लांट, यदि ये इसको अपन पेंडिंग रख रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके और इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये रुबिस. यदि मैंने आपसे कहा कि C3 प्लांट्स note, if C3 plants perform photorespiration, then it's a wasteful process. उसका दिन के समय सांस लेना नॉनसेंस प्रोसेस है. Do you agree with this? Can you explain this statement with respect to this enzyme? सोचो यार, मतलब मैं तो बिल्कुल बताने के मूड में नहीं हूं. सोचो, with respect to Rubisco, just justify this statement. Try to justify. If anyone, just raise your hands. Mugdha Babiskar, are you there? Mugdha Babiskar, are you there? Mugdha Babiskar, I will remove you. बहुत बढ़िया. Prathamesh Abhale, are you there? Yes, sir. Perfect. मैं विनर पे डाल ही दूं पहले कि Mugdha is not attending the lecture. चलिए. Anyone? Smira, can you try? Mishra ji, can you try? Siddesh? Sir, Siddhi? can I बोलिए. try? Yes. Sir, is it because क्योंकि जो ATP प्रोड्यूस हुआ था वो फोटो रेस्पिरेशन में लग जाएगा? ठीक है, मान लिया. और मनोली कुछ कहना चाह रही. You raise your hands. सर वो प्लांट्स यूज नहीं कर पाते खुद का एटीपी और NADH. No. Yes. सिद्धि बोर से थोड़ा सा लॉजिकली अप्रोच देखो भैया. सिद्धि सर सोच रही हूँ. सोचिए. प्रणव आपको सोच लिए, बोलिए. सर वो ऑक्सीजन से, रुबिस को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना था. परफेक्ट. वेरी नाइस प्रणव, वेरी नाइस. प्राउड ऑफ यू माय डियर. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर. अरे बच्चों सोचो, यदि ये प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करता रहा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट स्मिरा? व्हाट इट विल इनटेक, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? Oxygen. Oxygen. Intake of oxygen. Then what do you expect? Rubisco will act as carboxylase or will act as oxygenase? ऑक्सीजन. Perfect. Therefore, activity will be oxygenase. Rubisco activity will be oxygenase. What do you think? Carbon dioxide will be fixed or not? No, sir. No, sir. Fixation. No fixation. Means, should I say no yield?
Yes, sir. दिस इज द नॉनसेंस प्रोसेस ना, यही तो पूछ रहा था मैं आपसे। प्रणव वेरी हैप्पी विद दिस। अटेंटिव बैठने का ये तरीका होता है, मतलब इसलिए मैंने पहले ये लिखा और फिर सवाल पूछा कि भाई मैंने बता दिया रुबिस्को ये दोनों की तरह काम करता है, और फिर मैंने कहा कि फोटो रेस्पिरेशन, और इस वर्ड को आपको फोकस करना है कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि वहां रुबिस्को ऑक्सीनेज की तरह काम कर रहे हैं, और इसीलिए C3 एक वेस्टफुल प्रोसेस को करने की वजह से इसका यील्ड बहुत कम होता है। और इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, C3 प्लांट डेवलप्स और सम प्लांट डेवलप द C4 प्लांट्स। उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप की और उन्होंने फोटो रेस्पिरेशन बंद कर दिया। Therefore, few plants evolved as a new anatomy and no photorespiration. और ऐसे किसी प्लांट को मैंने कह दिया व्हाट, C4 प्लांट। बच्चों आया क्या कुछ समझ में? सर लेकिन Yes, sir. हाँ बोलो। सर लेकिन वो प्लांट्स तो CO2 इंटेक करके ऑक्सीजन देते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? फिर से बोलो ओम, जोर से बोलो बेटा। सर प्लांट्स तो CO2 इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो फिर वो O2 कैसे लेंगे? तो क्या प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है क्या? वही तो मैंने पहले वही तो पूछा था तुमसे, क्यों मैंने वो स्क्रीन शेयर करके रखी थी तुमसे। प्लांट रेस्पिरेशन करेगा या नहीं करेगा ओम? करेगा सर। और करेगा तो क्या लेगा? रेस्पिरेशन करेगा तो CO2। अरे मिश्रा जी क्या कर रहे हो? रेस्पिरेशन में CO2 लेता है क्या प्लांट? अरे भाई ओम, रेस्पिरेशन बोल रहा हूं मैं, फोटोसिंथेसिस नहीं। ओम कुछ बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ही बड़बड़ाता जाऊंगा। तुझे समझ में आ रहा है फर्क फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में? नो सर। रेस्पिरेशन में क्या होता है इन जनरल? रेस्पिरेशन क्या होता है? क्या लेना और क्या छोड़ना हो? सर ऑक्सीजन लेते CO2 निकालते। उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ सर। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? CO2 लेना, ऑक्सीजन निकालना। तो मैंने क्या पूछा था तुझसे? फोटो रेस्पिरेशन। मतलब दिन के समय होने वाला रेस्पिरेशन। अग्रीड? यस सर। और रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या लेगा? सर लेकिन वो नॉर्मल रेस्पिरेशन भी तो करेंगे ना। नॉर्मल रेस्पिरेशन ही तो बोल रहा हूं मैं, कौन सा अलग रेस्पिरेशन बोल रहा हूं? लेकिन दिन के समय होने वाला रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन तो कहूं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ओम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर। ओम आर यू देयर? यस सर। मुझे बस इतना बता, मैं दिन के समय का रेस्पिरेशन और रात को जब सोता हूं उस रेस्पिरेशन में कुछ फर्क है क्या? नो सर। नो। प्लांट दिन में जो करता है और रात में जो करता है उसमें कुछ फर्क है क्या? सर रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हाँ, अब कैसे पकड़ा तूने? रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो नॉर्मल रेस्पिरेशन तो होगा ही ना। हाँ सर। और इसीलिए तो बुजुर्ग कहते थे कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भाई? ऑक्सीजन ले लेते हो। क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं रहा होगा। वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा लेकिन रेस्पिरेशन तो कर रहा होगा ना। यस और नो? यस सर। अब दिन के समय कोई प्लांट, बुजुर्ग कहते हैं कि प्लांट पेड़ के नीचे सो जाओ, पेड़ के नीचे रुक जाओ। क्यों? सर क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्योंकि वहां पर वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा होगा। यस और नो? यस। यही तो अपन कहते हैं कि मम्मी घर में बिना सांस लिए काम करती रहती यार, घड़ी भर के, मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे ठीक है ना भाई, जब तक दिन का समय है मैं काम कर लूं। तो प्लांट भी तो यही सोच रहा है ना कि दिन का समय काहे को सांस लेता बैठूं मैं तो सिर्फ क्या करता रहूं, फोटोसिंथेसिस करता रहूं, और वो ऑक्सीजन तो निकलेगी ही ना। तो Yes, sir. ऑर्गन को तो मिलती रहेगी और प्राणवायु बाहर वालों को भी मिलती रहेगी।
हाँ सर समझा. अग्रीड? यस. परफेक्ट. दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? सर फोटो sir. रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है. बोलिए, फिर से बोलिए. सर आई वाज आस्किंग दैट फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है. ये भी ठीक पूछा आपने. फोटो रेस्पिरेशन वैसे देखा जाए मनोली मैडम, तो ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन इज अ ओवरऑल वेस्टफुल प्रोसेस. व्हाई प्लांट शुड यूटिलाइज दैट एटीपी जो उसने लाइट रिएक्शन में बनाया, वो रेस्पिरेशन में क्यों यूज कर रहा है? पहली चीज. दूसरा, वो दिन के समय जब सनलाइट जब तक है तब तक खाना बना ले, फिर रात को आराम से सांस लेता रहे. तो ओवरऑल फोटो रेस्पिरेशन इज अ wasteful process, though it is taking place in C3 plants. So some plants developed as C4, they develop their anatomy, they change their anatomy, and they minimize their respiration in during daytime. ऐसा नहीं होता कि प्लांट बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह ले, बट वो बहुत रिड्यूस, इतना मिनिमाइज कर देता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है. मनोली, यस सर. इसीलिए C3 प्लांट का नेट प्रोडक्शन एज कंपेयर टू C4 प्लांट थोड़ा कम होता है, बिकॉज दे डू फोटो रेस्पिरेशन अलॉन्ग विथ फोटोसिंथेसिस, जबकि C4 प्लांट इवॉल्व्ड अ स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज, नेग्लेक्ट द फोटो रेस्पिरेशन एंड टू बेस्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अंडरस्टूड? यस सर, गॉट इट. आई होप द सेशन इज गुड इनफ. स्मेरा, सर आपने बोला कि रुबिस्को वो एंजाइम होता है जो कि ये फैसिलिटेट करता है, एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर. दैट मींस C3 प्लांट्स C4 से ज्यादा है अभी फिलहाल. क्यों फिर से बोला, ऐसा क्यों आया आपके दिमाग में? सर मेरा क्वेश्चन है कि रुबिस्को क्या C4 प्लांट्स में यूज होता है? हाँ, इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया ना, मैंने पेंडिंग लिखा इसको. मैंने Okay, पेंडिंग sir. लिखा इसको. रुबिस्को के बिना तो मैडम कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी फिक्स्ड एट ऑल. स्मेरा, विदाउट दिस Okay. एंजाइम, without this enzyme, even C4 cannot fix the carbon dioxide. But what they minimize? Which activity? Oxygenase, And what they perform? carboxylase. Because they do not photorespire. Smera, did you understand? Yes, sir. Even C4 plant develop with one more adaptation. They reduce their surface area of the leaf and they are surviving on more temperature with the global warming. ये भी एक नया तरीका उन्होंने डेवलप किया और इसके लिए एनाटॉमी डेवलप की, दैट इज क्रांज एनाटॉमी. इसलिए मैंने लिख दिया न्यू एनाटॉमी. दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, क्रांज एनाटॉमी. वो भी हम पढ़ेंगे. स्मेरा, Okay, sir. परफेक्ट. वन मोर, मिश्रा जी, यस, यू हैव सम क्वेश्चंस. सर आप ये लेक्चर और इसके एक पहले जो लेक्चर लिया था जिसमें आपने वो प्रोटॉन ग्रेडियंट समझाया था, वो दोनों लेक्चर अपलोड कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ भैया, करने में क्या ही है. कुछ स्पेशल खिला रहे हो कल तो बताओ, कल मिलने आ रहे हो तो कुछ डब्बे में ला रहे हो, खिला रहे हो तो मैं कर दूंगा यार. मिश्रा जी बोलो, खिलाओगे? और क्या खाना है? अरे यार, मतलब तुम वो भी नहीं बोलते कि हाँ खिला देंगे. कोई बात नहीं, जो भी ले आना खा लेंगे यार भाई, अपलोड कर दूंगा. एक और किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, मनोली ने, लीजा भी Yes, कह sir. रही है. तो भैया कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब तक उसके बिना कैसे अपलोड होगा यार. Okay, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग. चलिए करता हूँ बच्चों, ऑल द बेस्ट. आई होप सेशन इज गुड टू यू. Yes, sir. चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. थैंक यू. Bye, sir. बाय बाय, गुड नाइट.